आज डिस्कस करेंगे हम SDI डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। SD का मतलब जो लास्ट टाइम मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपके सेशन से पहले भी डिस्कशन किया था, आज फिर से करते हैं। एक बार बंद कर देखो कमरो, पूरा तक आवाज आ रही है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क जो हमारा था IoT के अंदर, ये इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी के बारे में, जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में कि टोपोलॉजी कौन कौन सी यूज में लेते हैं। जो नॉर्मली हम इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो टोपोलॉजी होती हैं वो 5 टोपोलॉजी होती हैं। कौन सी होती हैं? एक होता है स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, हैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ये सारी की सारी टोपोलॉजीज हम यूज में लेते हैं। दूसरी चीज़, जब हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग SDN इज एन अप्रोच। क्या आवाज़ कम करवाते थोड़ी। Software defined networking is an approach to networking that use the software based controller or application programming interface to communicate with the underlying hardware infrastructure and direct traffic on a network. This module differs from the traditional network which use a dedicated hardware device, router or switch to control network traffic. SDN can create and control a virtual network or control a traditional hardware via software. How does software defined networking work? किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग काम करता है? Here are the software defined network bases in SDN. Like anything virtualized, the software is decomputed from the hardware. SDN moves the control place and determine where to send the traffic to software and leaves the data plan that actually forwarded and traffic in the hardware defined networking to program and control to entire network via the single pane of glass inserted on a device by device basis. इसके अंदर जब हम बात करते हैं, किसी भी नेटवर्क की बात करते हैं, तो एक ये था नॉर्मली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। जब हम इसको IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में इसको कनेक्ट करके जब हम देखते हैं तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क is an approach to networking the user software based controller or application interface to communicate with underlying hardware infrastructure and direct traffic on the network. सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क को किस तरीके से हम IoT के अंदर यूज कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज यूज्ड इन IoT नेटवर्क to improve the network performance, provide more direct control over the routing, analysis network traffic and manage the network efficiency with the centralized controller. In this study, an architecture is proposed for the efficient transmission of sensor data is SDN based on the Internet of Things networks. कौन कौन सी 3 लेयर्स होती हैं SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के अंदर? एक होता है एप्लीकेशन लेयर होता है,
एक कंट्रोल लेयर होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क के? एक होता है वर्चुअलाइजेशन, एक होता है SD-WAN जिसको हम सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं, एक होता है स्विचिंग फैब्रिक्स, एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग, एक होता है एक्सेस नेटवर्क। इसका फीचर्स क्या है, क्या फीचर है इसका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इज ए हाईली फ्लेक्सिबल align way to adapt to grow networking requirement and enable automation and agility by separating the network control and forwarding the plan. SDN make network control a programmable entity and abstract and infrastructure on demand. इसको कहाँ पर हम यूज लेते हैं? Why is SDN used? क्यों हम इसको यूज लेते हैं? SDN separates the control of the network for the hardware. It uses the software application to program your network intelligence through the centralized control. This means the underlying hardware and associated technology are still there, but they are programmed centrally. इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? लास्ट ये देखते हैं हम। Software defined network offers the automated scaling up and scaling down. The ability combined with the additional visibility it brings give the engineer the operational ability to normalize traffic across a wide space and to do seamless usage. इसका कुछ बेनिफिट्स होते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं? एक होता है एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, हम मैनेज करते सकते हैं किसी भी सिक्योरिटी को। एक मैक्सिमम फिजिकल और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। लो ऑपरेशनल कॉस्ट में हम किसी भी नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन टास्क में इसको सेंट्रलाइज्ड ऑटोमेटेड रिजल्टिंग के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। ये OSI लेयर की कौन सी लेयर पे ये काम करता है? सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क कौन सी लेयर पे काम करता है? ये मेनली OSI लेयर की 7 लेयर्स होती हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये हमेशा काम करता है। जो ये फ्लेक्सिबल होता है, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वो मिडल लेयर्स भी बोल सकते हैं उसको हम। दूसरा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग डिप्लॉयमेंट टोपोलॉजी। The point-to-point topology. A point-to-point topology is the simplest topology that includes an AND node and a gateway. There is a direct wireless connection between the AND node and gateway. The range of the network is a point-to-point topology is limited to a single hop and depends on the wireless communication technology protocol being used. Star topology. In star topology, there is the single gateway node to which all the AND nodes are directly connected over a wireless link. Star topology provides a consistent and predictable performance as the data packets from the AND node travel on hop to directly reach the gateway. एक होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो मैश टोपोलॉजी क्या काम करता है? ए मैश टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ एंड नोड्स, राउटर nodes and gateway. The AND node send data to the router which routes the data to the gateway. Data packets from AND node travel multiple hops to reach the gateway node. Mesh topology is useful to extend the network range as the network range is not limited to a single hop as in the case of a star topology. एक होता है IoT डिवाइस टाइप्स। कौन कौन सी IoT डिवाइस टाइप्स होती हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में
आईओटी की कौन कौन सी डिवाइस की टाइप्स होती हैं इनके अंदर। आईओटी डिवाइस टाइप मेन होता है, एक सेंसर होता है, गेटवे होता है, एक वेरिएबल टेक्नोलॉजी होता है, स्मार्ट लॉक होता है। जब हम आईओटी की बात करते हैं तो स्मार्ट मोबाइल्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट फायर अलार्म, स्मार्ट डोर, स्मार्ट लॉक, स्मार्ट बाइसिकल, मेडिकल सेंसर, फिटनेस ट्रैकर्स, स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स, दीज ऑल आर स्मार्ट डिवाइस टाइप्स। और इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं जो आईओटी से रिलेट करती हैं। पहला होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक होता है मोबाइल सेलुलर आईओटी कनेक्टिविटी, एक होता है वाईफाई आईओटी कनेक्टिविटी, एक होता है बूट स्टेप आईओटी कनेक्टिविटी, एक आईओटी कनेक्टिविटी मैनेजमेंट, एक होता है यूज केस आईओटी। सर आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। आवाज कट रही है, एक सेकंड। अब अब आ रही है। हेलो, क्लियर आई है सर, पहले बीच में कट गई थी पूरी। आज बेटा आंधी चल रही है शायद इससे। नॉट क्लियर सर। अब आ रही है। हेलो, अब अभी आ रही है बेटा। हेलो, 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 अभी आ रही है आवाज। महावीर, हेमलता, शिवानी, अनुज, हेलो। सर अब आ रही है क्लियर, बीच बीच में ब्रेक होती है, अब आ रही है बीच में, अब आने लग गई है, नाम बोल रहे हैं देखिए, फिर पूरा ब्रेक हो रही है। अभी तो मैं बोला ही नहीं। अब आ रही है सही। हेलो, 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 बेटा अभी रिप्लाई करो। हाँ जी सर। आ रही है ना। हाँ अब आ रही है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे व्हाट आर द 4 टाइप ऑफ आईओटी डिवाइसेस। तो पहला है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल सेलुलर सर ये आईओटी। जो टोपोलॉजी आपने बताया है, हाँ जी। 3 टाइप की टोपोलॉजी, हम्म। तो इनका कोई एप्लीकेशन एक बार बताएंगे सर, क्योंकि मैश और एक वाली जो थी वो लगभग सिमिलर लग रही हैं। उससे पहले वाली जो थी वो बेटा मैं जो डायरेक्ट वाली थी। एक मिनट में आपको बता दूं, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर 5 टोपोलॉजी होती हैं। इसमें आईओटी के अंदर उनको पांचों को एक तरीके से एक के दूसरे में घुसेड़ के 3 बना दी, जबकि बेसिकली किसी भी नेटवर्क के अंदर यूज में लेते हैं तो वो 5 टोपोलॉजी होती हैं। पहली होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार मीन्स तारे के जैसे आकार का नेटवर्क होता है, उसके अंदर क्या होता है, सर्वर सिस्टम होता है। मैं पांचों के बारे में समझाता हूँ। एक सर्वर सिस्टम होता है, ठीक है। उस सर्वर सिस्टम के साथ में वो एक स्टार के रूप में सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, जिनका डेटा का आपस में आदान प्रदान होता है। एक होता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है कि बस के अंदर एक तरीके से मतलब स्ट्रेट ये सारा कनेक्टेड होता है। आपकी आवाज ही चली गई सर। नहीं गई देयर है। इज नो अरे वॉइस। भाई साहब नहीं गई है, चिंता मत करो, आ रही है ना अभी। हेलो। हाँ सर आ रही है। हाँ, अब हाँ सुन। जी आप। हाँ, मैं पांचों टोपोलॉजी के बारे में आपको बता रहा हूँ, रुको। स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि सेंट्रल एक क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम होता है। उस कंप्यूटर सिस्टम के साथ में मल्टीपल डिवाइसेस, मैं डिवाइस का नाम बोलूँगा, समझ लेना कंप्यूटर सिस्टम। मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट होते हैं किसके
रूप में, एक स्टार के रूप में। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम इसको बस टोपोलॉजी की मैनर में बोल सकते हैं। बस और स्टार दोनों सिमिलर टाइप की होती हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब वो मैनेज करता है किसको, किलोमीटर ऑफ केबल्स को, यानी कि उस सर्वर से कनेक्टेड जो डिवाइस है वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर कहीं की कुछ किलोमीटर तक भी हम उस डेटा को भेज सकते हैं। लेकिन जो डेटा भेज रहे हैं वो डेटा फाइनली कहाँ पर कनेक्टेड है, एक सेंटर पे कनेक्टेड है किसी भी डिवाइस का। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द स्टेशन आर कनेक्टेड टू द सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ओके सर जी। और बस टोपोलॉजी क्या होता है, बस टोपोलॉजी के अंदर जब हम नॉर्मली किसी भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करते हैं तो बस का मतलब इस तरीके से होता है कि जैसे एक स्ट्रेट नेटवर्क, जैसे हमारे घरों में फिटिंग नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग होती है ना घरों में, तो वो एक तरीके से बस की तरह काम करता है कि वो एक नेटवर्क चल रहा है, एक सर्वर सिस्टम से कनेक्टेड है और उसके साथ में वो लाइन चल रही है और उस लाइन में से ही अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होती जा रही हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि उसका डेटा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में चलता है। एक होता है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, उसमें स्टार टोपोलॉजी भी होता है, बस टोपोलॉजी भी होता है, हैश टोपोलॉजी भी होता है, मैश टोपोलॉजी भी होता है, यानी कि सारी की सारी टोपोलॉजी एक साथ में कनेक्ट होके और उस डेटा को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से, ए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इज ए कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट लिंक एंड नोड्स टू ट्रांसफर डेटा when two or more different topology are connected together to term for the data transmissions। एक होता है हमारा, नेक्स्ट होता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जिस तरीके से डायमंड नहीं होता, डायमंड का आकार होता है मैश टोपोलॉजी। मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो ऐसे होता है कि एक ये हो गया, एक यहाँ हो गया, एक इस तरीके से हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इस डिवाइस से इस पे भी कनेक्टिविटी है, इस पे भी कनेक्टिविटी है, इस पे भी है, इससे भी है, इससे भी है, इससे ये डायरेक्ट भी है, इसके साथ में ये डायरेक्ट है, इसके साथ में ये भी कनेक्टेड है और इसके साथ में ये भी कनेक्टेड है और इससे ये कनेक्टेड है। इसको क्या बोलते हैं, मैश टोपोलॉजी बोलते हैं इस तरीके की कनेक्टिविटी को। यानी कि कोई भी सिस्टम किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड है जिसके अंदर वो डेटा आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल वैन होता है, वर्ल्ड एरिया नेटवर्क। इसके अंदर क्या होता है, जब हम पर्टिकुलर किसी भी इंटरनेट को हम कनेक्ट करते हैं तो मैश टोपोलॉजी के अंदर ही कनेक्टेड होता है। इज मेनली यूज्ड फॉर वैन वाइड एरिया नेटवर्क implementation where the communication failure are the circular concerned mesh topology। एक दूसरी चीज हम इसके अंदर बात करेंगे तो जब टोपोलॉजी होता है इसके, एक होता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से होता है, जैसे हमारी अंगूठी नहीं होती है, इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। मैं एक बनाता हूँ, देखो ये इस तरीके से कनेक्टेड होता है। इसके अंदर जगह जगह क्या होते हैं, डिवाइस कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से, इसको बोला जाता है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की डेफिनेशन अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस ऑन आइदर साइड वाया RJ45 कनेक्टर केबल और कोएक्सियल केबल। कैसे, कोई भी एक डिवाइस, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक डिवाइस है, ये कोई भी दो डिवाइस से दोनों साइड में कनेक्टेड है, एक तो इधर भी डिवाइस है, एक इधर भी डिवाइस है, और ये दोनों डिवाइसेस के साथ जो कनेक्टेड हैं ये लेन वायर के थ्रू, सीधी सीधी भाषा में बात करो कि लेन वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर। क्या बोलते हैं, RJ45 कनेक्टर, जो लेन वायर के आगे लगा रहता है, उसके थ्रू ये सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं। दिस फॉर्म इज द सर्कुलर रिंग ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस विच गिव्स इट्स द नेम। डेटा इज कॉमनली ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन along with the ring is known as the unidirectional ring data। इसको ये बोला जाता है। ठीक है जी सर, हेलो। हाँ जी सर। और कुछ बताना, ये होती हैं मोस्टली 5 टोपोलॉजी होती हैं।
ठीक है। इसके अंदर आपको अगर पढ़ना है ना तो आज मेरा यूट्यूब चैनल पे जाके कंप्यूटर नेटवर्क का तीसरा चौथा लेक्चर पढ़ा, कंप्यूटर नेटवर्क वाले लेक्चर में, उसमें 5 टोपोलॉजी के बारे में विथ डायग्राम मैंने समझा रखा। आप 10 मिनट का लेक्चर है, उसको सुन लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है। और बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, देखो मैं 1 सेकंड बस वाला भी बता देता हूँ आपको साथ में। आप पता नहीं जाओगे, सब्सक्राइब ही नहीं करते, जाओगे कहाँ से। बस के अंदर इस तरीके से होता है, एक नेटवर्क है, इसके अंदर सपोज यहाँ रिक्वायरमेंट हुई, हमें एक ये डिवाइस कनेक्ट कर दिया, फिर हमें यहाँ रिक्वायरमेंट हुई, एक डिवाइस हमने ये कनेक्ट कर दिया, एक ये रास्ते में यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो गई, एक डिवाइस हमने ये कनेक्ट कर दिया, एक रिक्वायरमेंट यहाँ हुई, हमने यहाँ पर डिवाइस कनेक्ट कर दिया, एक ये रिक्वायरमेंट हुई तो हमने ये डिवाइस कनेक्ट कर दिया। ये क्या होता है, एक बस टोपोलॉजी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, बस टोपोलॉजी बोला जाता है। इसके अंदर जब हम पर्टिकुलर किसी भी टोपोलॉजी की बात करते हैं, बस टोपोलॉजी, तो ये क्या होता है कि स्ट्रेट मैनर में डेटा कनेक्टेड होता है। एक लेन वायर होता है जिसके साथ में स्विच के थ्रू ये लाइन डिवाइडेड होती है, जो अलग अलग डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड होती है। इसके अंदर 2 टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी यूज में ली जाती है, इसको फिजिकल और लॉजिकली। फिजिकल और लॉजिकल किस तरीके से, फिजिकली किसी वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड होता है और लॉजिकली वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। ठीक है जी, हेलो। ठीक है सर। अब बात करते IoT डिवाइस हो गया। हाँ, मशीन लर्निंग की बात करते हैं। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या है, पहले इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। मशीन लर्निंग की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन में बोल रहा हूँ। What is machine learning? Machine learning is a branch of artificial intelligence and computer science which focus on the use of data and algorithm to imitate the way that humans learn and gradually improve its the accuracy. अब मशीन लर्निंग को नॉर्मली भाषा में मैं बोलूँ तो क्या होता है मशीन लर्निंग? Machine learning is a branch of artificial intelligence and computer science which focus on the use of data and algorithm to eliminate the data and way of the data. दूसरा, मशीन लर्निंग के टाइप्स, कितने टाइप का होता है, तो 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं मशीन लर्निंग के। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, एक होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। ये इस क्या होते हैं, मशीन लर्निंग के टाइप्स होते हैं। अब इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ मशीन लर्निंग का, जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर काम होता है इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन इज वेल नोन एज द वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इन द रियल वर्ल्ड. It can identify an object as the digital image based on the intensity of the pixels in black and white image or color image. दूसरी चीज़, मशीन लर्निंग की टाइप्स जो मैंने आपको बताई दी हैं। मशीन लर्निंग का यूज क्या होता है, अब इसके बारे में। एट प्रेजेंट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आर वाइडली यूज्ड बाय द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्निशन, गूगल असिस्टेंट्स, सिरी हैं, कॉन्ट्रा, एलेक्सा और स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉलोड बाय द वॉइस इंस्ट्रक्शंस। ये सारे के सारा हम मशीन लर्निंग का यूज होता है। हेल्थ केयर सेक्टर में होता है, मिलिट्री सर्विसेज में होता है, टेलीफोन सर्विसेज में होता है, और बहुत सारे स्टॉक प्रेडिक्शन मार्केट में होता है। दूसरा, ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन में होता है, मेडिकल डायग्नोस्टिक में होता है, स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग में होता है, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन में होता है, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंस में होता है, ईमेल स्पैम एंड मालवेयर फिल्टरिंग के लिए हम यूज में लेते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं, प्रोडक्शन रिकमेंडेशन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं, ट्रैफिक प्रेडिक्शन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं, इमेज रिकॉग्निशन के लिए हम मशीन लर्निंग यूज में लेते हैं। ये सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के अंदर हम यूज में लेते हैं। सो मशीन लर्निंग
की हम बात करते हैं, मशीन लर्निंग tutorials provide basic and advanced concept of the machine learning. The machine learning tutorial is designed for the student working professional. Machine learning is a growing technology which enable the computer to learn automatically from past data. मशीन लर्निंग क्या है? एक इनेबल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो लर्न करता है अपने आप ऑटोमेटिकली पास्ट डेटा के बिहाव से. मशीन लर्निंग यूज वेरियस एल्गोरिथम फॉर बिल्डिंग मैथमेटिकल मॉड्यूल्स एंड मेकिंग प्रेडिक्शन यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा और इंफॉर्मेशन. करंटली it is being used for the various tasks such as image recognition, speech recognition, email filtering, Facebook auto tagging, recommendation system and many more. This machine learning tutorial give you an introduction of the machine learning along with the wide range of the machine learning techniques such as the supervised, unsupervised and reinforcement learning. You will learn about the regression and classification modules, clustering methods, hidden Markov module और various sequential modules. What is machine learning? इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मशीन लर्निंग क्या है? We are surrounded by the human who can learn everything from their experience with their learning capability, and we have the computer or machine which work on our instructions. But can a machine also learn from the experience or past data like a human does? So here come the role of machine learning. Suppose ये एक आदमी है, humans, ये क्या बोल रहा है? I can learn everything automatically from the experience. Can you learn? Then ये रोबोट है, ये मशीन लर्निंग की इसकी टेक्निक्स हैं. वो क्या बोलता है? येस आई कैन आल्सो लर्न फ्रॉम पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ द मशीन लर्निंग. ये रोबोट क्या बोल रहा है? आदमी बोल रहा है मैं किसी भी डेटा को अपने आप सीख सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ. मशीन लर्निंग की टेक्निक के थ्रू रोबोट क्या बोल रहा है? मैं भी हर चीज़ को सीख सकता हूँ लेकिन पास्ट डेटा के बिहाव से ही सीख सकता हूँ. दूसरी चीज़, मशीन लर्निंग इज सेड as a subset of artificial intelligence that is mainly concerned with the development of algorithm which allow a computer to learn from the data set and past experience on their own. The term machine learning was first introduced by the Arthur Samuel 1959. We can define it in a summarized way. Machine learning enable a machine to automatically learn from the data, improve performance from the experience, and predict things without being explicitly programmed. With the help of the simple historical data, which known as the training data, machine learning algorithm build a mathematical module that helps in making predictions or decision without being explicitly programmed. Machine learning brings computer science and statistics together to create the predictive modules. Machine learning constructs or use the algorithm that learn from the historical data. The more we will provide the information, there the higher will be the performance. हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क? किस तरीके से मशीन लर्निंग काम करता है, उस चीज़ के बारे में देखते हैं. हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क? नंबर 1, a machine learning system learn from the historical data, builds the prediction module, and whatever it receive new data, predict the output for it. The accuracy of the predict the output for it. The accuracy of the predicted output depends upon the amount of the data, as the higher amount of the data help to build a better module
which predicts the output more accurately. Suppose we have a complex problem where we need to perform some predictions. So instead of writing a code for it, we just need to feed the data to generate the algorithm, and with the help of these algorithm, machine builds the logic as per the data and predict the outputs. एक होता है machine learning has changed our way of the thinking about the problem. The below block diagram explain the working of the machine learning algorithm. इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इनपुट लिया जाता है पास्ट डेटा का, देन ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग किसके बिहाव पे होता है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के इस बिहाव पे। ये क्या करता है? लर्न करता है किसी भी डेटा को, पास्ट डेटा को। देन वो क्या करता है? बिल्डिंग लॉजिकल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करता है। बिल्डिंग लॉजिकल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले ट्रेन होता है डेटा, फिर टेस्ट होता है। उसके बाद में वो क्या करता है? ट्रेन और टेस्टिंग के बाद में जो कोई नया रिजल्ट क्रिएट होता है, उस नए रिजल्ट की बिहाव पे यहाँ पर वो एक आउटपुट डिस्प्ले करता है। जो आउटपुट डिस्प्ले करता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सपेक्टेड आउटकम, एक होता है एक्चुअल आउटकम। उन दोनों के रूप में वो इनको एक रिजल्ट के रूप में शो करने का काम करता है। फीचर्स ऑफ मशीन लर्निंग, क्या क्या फीचर्स हैं? मशीन लर्निंग यूज डेटा टू डिटेक्ट द वेरियस पैटर्न इन ए गिवन डेटा सेट. It can learn from past data and improve automatically. It is a data-driven technology. Machine learning is much similar to data mining as it also deals with the hug amount of the data. Needs for machine learning, क्यों जरूरत हुई हमें machine learning की? The need of the machine learning is increased day by day. The reason behind the need for the machine learning is that it is capable of doing tasks that are too complex for a person to implement directly. एक होता है as a human we have some limitations as we cannot access the hug amount of data manually. So for this we need some computer system, and here come the machine learning to make things easy for us. We can train machine learning algorithm by providing them the hug amount of the data and let them explore the data, construct the module and predict the required output automatically. The performance of the machine learning algorithm depends on the amount of data, and it can be determined by the cost functions. With the help of machine learning, we can save both the time and money. The importance of the machine learning can be easily understood by its use case. Currently, machine learning is used in self-driving cars, cyber fraud detection, face recognition, friend suggestion by Facebook, etc. Various top companies such as the Netflix and Amazon have built machine learning modules that are using a vast amount of data to analyze the user interest and recommendation product accordingly. Following are some key points which show the importance of machine learning. Rapid increment in the production of data, solving the complex problem which are difficult for a human.
decision making in various sectors including the finance, finding hidden pattern and extracting useful information from the data। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। At a broad level, machine learning can be classified into three types: एक सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग और एक होता है सेमी सुपरवाइज लर्निंग। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग ये डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है। इसके अंदर बताया गया सुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। ये आपको क्लासीफाई कर रहा है मशीन लर्निंग की टेक्निक्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग की। व्हाट इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग? ए सुपरवाइज्ड लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मेथड्स in which we provide the simple labeled data to the machine learning system in order to train it, and on that basis it predicts the output। दूसरा होता है the system create a module using the labeled data to understand the data set and learn about each data। Once the training and processing are done, then we test the module by providing a simple data to check whatever it is the predicting the exact output or not। The goal of supervised learning is to map input data with the output data। The supervised learning is based on the supervision, and it is the same as when a student learns things in the supervision of the teacher। The example of the supervised learning is spam filtering। Supervised learning can be grouped further in two categories of algorithm। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है? इसमें होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। Unsupervised learning is a machine learning method in which the machine learns without any supervision। The training is to provide to the machine with the set of data that has not been labeled, classified or categorized, and the algorithm need to act on the data without any supervision। The goal of unsupervised learning is to restructure the input data into new features or a group of objects with similar patterns। एक होता है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग we do not have a predetermined result। The machine tries to find useful insight from the hug amount of the data। It can be further classified into two categories of algorithm। एक होता है क्लस्टरिंग, एक होता है एसोसिएशन। क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। नेक्स्ट होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर क्या होता है? रेनफोर्समेंट लर्निंग इज ए फीडबैक बेस्ड लर्निंग मेथड in which a learning agent gets a reward for each right action and get a penalty for each wrong action। The agent learns the automatically with these feedback and improve its the performance। In reinforcement learning, the agent interact with the environment and explore it। The goal of the agent is to get the most rewarded point and hence it improve its the performance। मार पड़ेगी बहुत ज़्यादा, रुक जा, मैं क्लास खत्म करता हूँ फिर बताता हूँ। To get the most reward point and hence it's improve its the performance। ये आपके सामने एक डायग्राम है रेनफोर्समेंट लर्निंग का, जिसके अंदर क्या होता है कि एक पब्लिक प्राइवेट क्लाउड होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेट से एक MQTT गेटवे के थ्रू कनेक्टिविटी होती है, जो एक वायरलेस और जिगबी के थ्रू ये सारी कनेक्टेड होते हैं, जो एंड यूजर तक किसी भी डेटा को सप्लाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है
जो क्लाउड पब्लिक और प्राइवेट होता है वो इंटरनेट के थ्रू हम गेटवे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके साथ में डिफरेंट नोड्स कनेक्टेड होते हैं जो वायरलेस और जीबी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तीसरा इसके अंदर ये होता है, जब हमारे पास में कोई भी पब्लिक प्राइवेट क्लाउड होता है जो इंटरनेट के साथ में गेटवे की कनेक्टिविटी लेता है, जो वायरलेस जीपी डाईमेश के साथ में कनेक्टेड होता है, और वो फाइनली आपस में एक मैश टोपोलॉजी के रूप में ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं, जिनकी कोई भी एक डायरेक्शन नहीं होती है, बाई डायरेक्शनल डेटा होता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की क्या हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बिफोर सम ईयर, अबाउट द 40-50 years, machine learning was since fiction, but today it is the part of our daily life. Machine learning is making our day-to-day life easy, from self-driving car, Amazon, virtual assistants, Alexa. However, the idea behind the machine learning is so old and has a long history. Below some milestones are given which have occurred in the history of machine लर्निंग। कौन कौन सा है मशीन लर्निंग की हिस्ट्री? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1940s में इसकी शुरुआत हुई, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। देन इस पर रिसर्च हुआ 1950s में, 1960s तक चलता रहा। 1967 में आता थे मशीन लर्निंग का इसका एक आविष्कार हुआ, यानी एक इन्वेंटरशिप हुई जो 1970 से लेकर के 2000 तक इसी चीज़ पे और रिसर्च चलता रहा। 2000 में आते थे, 2002 के अंदर एक नया इन्वेंटेशन आया जिसको बोलते हैं डीप लर्निंग, जो 2010 से लेके अभी तक टिल ईयर तक चलता जा रहा है। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग 1940s, उससे पहले 1940 से पहले की बात करूं तो मैं 1834 में चार्ल बेबेज, फादर ऑफ द कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं conceived a device that could be programmed with the punch card. However, the machine was never built, but all modern computer rely on its the logical structure. 1936 में Alan Turing give a theory that how a machine can determine and execute a set of instructions work. The era of the stored program computers. In 1940s, the first manually operated computer ENIC was invented, which was the first electronic general purpose computer. After that, the stored program computers such as the EDIC 1949 and 1951 and 1943 में क्या हुआ, human neural network was moduled with the electrical circuit. In 1950s, the scientists started applying the idea to work and analyzed how ह्यूमन न्यूरॉन्स माइट वर्क। इन 1950s में क्या हुआ, 1950s में एलन ट्यूरिंग पब्लिश्ड ए सेमिनल पेपर कंप्यूटर मशीनरी एंड इंटेलिजेंस ऑन द टॉपिक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन हिज पेपर ही आस्क्ड कैन मशीन थिंक, कि किस तरीके से मशीन सोच सकती है। मशीन लर्निंग एट 21st century, जो 21वीं सदी के अंदर मशीन लर्निंग किस तरीके से काम कर सकती है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।